Hello. Yes, Nikhil. Yeah. Okay. निखिल आप भेज दो उनको जल्दी. Sure, sir. Sure. Yes, ma'am.
Ananta, can you hear me? Yes, Manu, now I can. Yes. Just a second. I'm just turning on my video. Yes, you're audible now, Manoj. I can also hear. Actually, he is engaged in another call, so just finishing in 10 minutes. Nikhil, are you there? Yes, I am hearing. Okay, okay. Checking Kalpana with ma'am, him again. Yeah. Yes, I'm there. Hello, ma'am. Good Yeah, afternoon. hi, hello. Hello, Kalpana ma'am. How are you? Yeah, I'm doing great. Thank you. Thank you. I'm just starting my video in a minute. There's some issue with it. I'll just start my video. Sure, sure. I've also stopped my video. When you guys start, I will switch it on. Sure. Thank you.
So Kalpana, if I may know, I mean, Yeah. what was the point you started this and how you got into this thing? If we by the time we can, understand something from you and your experiences and observations. Yeah, like I always say in most of my talks, I was also just like any other citizen, where I was not like a born water warrior or something. My journey actually began when we moved back from US to Hyderabad, and I'm otherwise born and brought up in Bangalore, so I have never been in touch with no water situation or a tanker situation in my growing up years. Of course, now things have changed a lot, but after moving to Hyderabad, many communities that we've lived in, we are only managing tanker water. So my first mission was to see if we can live without tankers. So then started my own sustainable home. And when I was making this home, I was not sure, are we really going to, stay off the tankers or what? But luckily we didn't have to buy year after year. And today we've completed 9 years already. We didn't need a single tanker in a very tanker prone zone. So that itself was a great understanding. And then went ahead and worked on my community. And in my community also, we made it tanker free. We were buying common tankers and distributing. So with all our efforts in 2016, when there was harsh summer, the entire community जो है पूरे tanker से ही मतलब without tankers it was not working for anybody. But we didn't buy a single tanker as a community. वो मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था that अगर हम लोग efforts करेंगे तो we can come out of this situation. We can learn how to manage our water. And rainwater जो है, it comes free to you and it comes to your doorstep. बस उसको manage करने की बात है. So and we can create our own sustainable stories. मतलब किसी पे या tanker पे या the water that we get piped supply जो है, it comes from far off to every city today. From Hyderabad, we get pipe supply from 200 kilometers away. And these come from fresh water resources, fresh rivers. Rivers, we are already talking about 50% जो है deplete हो रहे हैं already. And उसके लिए बहुत सारा, people are working towards it. But these are the resources we are taking to our city today. So that's another thing, that we should not depend on water that comes as an imported supply from elsewhere. Instead, अपने खुद का जो resources है, understand these resources. अगर हम वो manage कर पाएंगे तो definitely हम सारे मतलब we can live with our own water. There is enough water. We don't know how to manage it. Even grey water, grey recycling. We can't talk only rainwater today. We have to talk about grey water recycling and everything. We have done it 9 years before. We know how many lakhs we have saved so far doing these things. So it is a question of managing water. ये नहीं है कि कोई और करे और हम ना करें और हम benefit करेंगे, नहीं, हर एक को करना है आज. Every person needs to act. Anybody who has a rooftop and who drinks water needs to act. So I started working on lakes, building communities around lakes, because lakes जो है हमारे rain water का सबसे बड़ा catchment होता है lakes. Right. And these are completely ignored, and we can't afford to ignore them. We have to safeguard them. So उसको safeguard करने के लिए बस उसके सारे जो communities हैं उसके आसपास, they have to come forward. So before starting restoration, my first work was to build the community around it. बहुत tough है to bring communities and create that conversation for the lake. But नामुमकिन नहीं है. It is not impossible. हो सकता है, and that we have proven that from a complete garbage lake, we have brought birds back to the lake. तो हर एक lake मतलब rejuvenate हो सकता है. We are a 1.3 crore population today,
and जो Right. lakes है वो reduced and come to like 185 lakes. Why can't 1.3 lakh, I mean crore population take care of 185 lakes? We can do it. बस उसके लिए एक will चाहिए. I mean, you have to have that rock kind of will to make it happen and understand that water is a depleting resource. Correct. It's not something it can, you can recreate it. You cannot recreate it. Right. And you have to think about हमारे जो future generations है, ऐसा नहीं कि पूरा हम, we use all of it and give nothing to our future generations. अगर हम ये बात पे we put our mind, I think we will be able to make. And like I said, हर एक को करना है आज. मतलब you don't depend on government or anyone to come. They all have to do a bigger action. But खुद के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके घर में क्या कर सकते हो? आपकी community में क्या कर सकते हो? Once we start thinking like this, जो collective effort होगा, बहुत बड़ा impact create करेगा. So what I did starting from my individual journey, आज जो है working with a city-wide approach. हमने पूरा हैदराबाद को 98 blocks में divide किया है, एक micro watershed के हिसाब से. And we've created the Dr. Rajendra. yeah, sure. Yeah, sir has joined. Sir, namaskar. Welcome to Social Story. Namaskar, thank you. Namaste, Rajendra ji. I hope you remember we met in Hyderabad at Lama Khan. Yes, Ananta. I remember you. Thank you. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello. How are Hello. you? I'm Uh, fine. Thank you, sir. Okay, I would like to welcome both of you to a platform on Social Story today. And we believe that the topic water is something that needs to be discussed by everyone. The discussion on the topic, but at the same time, it provides people with more insights on what is happening on the ground. What changes have not been taken by us personally, because when we hear the work that people are doing, like Kalpana ma'am, you are doing, sir, you are doing, so it seems very when work is seen by us, we just have to come together, pull everyone together and work on a common issue. That is something which is that why not come to a platform where people can hear about your stories, about your motivation came into this, and how each of us can come and unite ourselves on a single platform, so that further discussion can be taken ahead. Uh, who is an Indian water conservationist and environmentalist from Alwar district, Rajasthan in India. He is also known as Waterman of India, who won the Ramanan Magsaysay Award in 2001 and Stockholm Water Prize in 2015. He runs an NGO called Tarun Bharat Sangh, which was founded in 1975. NGO based in village Hori Bikampura in Thanagazi Tehsil near Sariska Tiger Reserve has been instrumental in fighting the slow bureaucracy mining lobby and has helped villagers take charge of water management in the semi-arid as it lies close to through the use of Johad rainwater storage tanks, check dams,
and time tested as well as path breaking techniques, he has been making a tremendous change in the society. He started from a single village in 1985, and over the years, Tarun Bharat Sangh has helped build over 8,600 johars and other water conservation structures to collect rainwater for the dry season. Welcome, sir. I would like to welcome you again to our platform. Uh, Also, I will start She has turned into a water conservationist champion and is driving the initiative Live the Lakes initiative in Hyderabad. The program is to create awareness about the importance of lakes, increase civic responsibility, and return the lake to its former glory. She has started with driving awareness around green homes, terrace garden for few years now. She actively engages community to drive towards vegetable gardens on terrace, composting of food waste, and water conservation. Kalpana Ramesh on Women's Day took over Prime Minister Narendra Modi's social media accounts, and she also a power message on water conservation, urging people to become a water warrior. Welcome to the event, ma'am. I would like both of you Thank to you. provide us some insights of your work, your journey, how we can personally learn from it, and be a part of a larger community. Thank you. Over to you, ma'am and sir. I would like to hear Rajinder Singh ji to begin the conversation. Sir? Yes. So what you listening from me? You tell me what I think you have to mute. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. So now, is it fine? Yes, it's better now. Yes. So, sir, we can start with yes. हाँ जी सर. मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? मैं सर सबसे आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ सोशल स्टोरी प्लेटफॉर्म पे और आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुला के हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. कल्पना मैम शुक्रिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा. आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया और आज मैं सुबह प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस का एक एड्रेस सुन रहा था जिसमें उन्होंने पानी के बारे में, जल के बारे में चर्चा की थी. आज के दिन मैं कल्पना मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर से बात करें अलग अलग विषयों पे, जल से एक समाज को हमारे बनाने की एक कोशिश है. मैं मैम आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बात को आगे लेके जाएं और अलग अलग विषयों पे चर्चा करें और इंसाइट और नॉलेज हमारे ऑडियंसेस को दें आप. Yeah, sure. Thank you. So Rajinder Singh ji, you are a huge inspiration to me. I have been following your work, and you are like a legend. हम जो कर रहे हैं बहुत मतलब we have only started like 7-8 years ago, and we are doing the work. But you are a legend in this. Can you tell us what was आपका क्या inspiration था पहले जब आप when you wanted to work towards water? I know you're very knowledgeable in this. आप कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आपकी जर्नी? देखिए मैं तो डॉक्टर था, भारत सरकार में था, लेकिन मेरे मन में आया कि सरकार में रह के हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो ये छोड़ के समाज के लिए काम करना चाहिए. और मैं सरकार से जयपुर से त्यागपत्र देकर अलवर जिले की थानागाजी तहसील के गांव किशोरी और बेगमपुरा में चला गया. वहाँ मैंने देखा कि लोग लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ गए हैं.
और ये सब होने का कारण था बेपानी, क्योंकि वहाँ पानी नहीं था। मैं चूंकि डॉक्टर था, उस ज़माने में पानी की कमी के कारण यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज थी। तो डॉक्टर तो बीमार को देख के इलाज ही करता है, तो हमने इलाज शुरू किया और उसमें से बहुत सारे रोगी ठीक हो गए। उनमें से एक रोगी ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमें आपकी दवाई और पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। हम पानी की कमी के कारण उजड़े हैं, इसलिए आप हमारे लिए पानी का काम करो। मैंने उससे कहा कि मुझे पानी का काम करना नहीं आता। मांगू काका उसका नाम था। उसने कहा मैं सिखा दूंगा। मैं जवान आदमी था, तो मैंने जवान आदमी की तरह सवाल पूछा कि जब तू मुझे सिखा देगा तो तू क्यों नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा ये काम आज़ादी से पहले हम ही करते थे, पर आज़ादी के बाद चुनाव होने लगा और चुनाव में गांव बट गया। अब गांव साझे का काम नहीं करता। तो मैंने कहा जब तुम्हारे कहने से साझे का काम नहीं करता तो मेरे कहने से कैसे करेगा। मांगू काका ने कहा कि तुम किसी के भी नहीं हो, और जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है, इसलिए लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। बस ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने मांगू काका से पानी का काम सीखकर पानी का काम शुरू किया। मांगू काका ने मुझे मेरी 2 दिन में मेरी 2 PhD कंप्लीट कराई। एक PhD थी जियो हाइड्रो साइंस में, क्योंकि अंडरग्राउंड एक्यूफर कैसे होते हैं, एवोपरेशन लॉस को रोकने के लिए अंडरग्राउंड एक्यूफर कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। और दूसरा था इन्वायरमेंट साइंस में, वाटर साइंस में, कैसे कम खर्चे में ऊपर से पानी को रोकते हुए ला सकते हैं, फिर नीचे कैसे अपने आप पेरेनियल हो जाता है पानी। तो मैंने उनसे जब आपने ये काम शुरू किया तो लोगों से कितना आपको मदद मिला, या मतलब वहाँ लोग मदद करने वाले थे ही नहीं। गांव सब उजड़ गए थे, सब डिस्प्लेस्ड हो गए थे, क्योंकि पानी नहीं था। बिना पानी कौन रहेगा वहाँ। तो बूढ़े लोग रहते थे। बूढ़े लोग जब मैं काम करता था तो आके बैठ जाते थे। तो ना मुझे अपेक्षा थी उनसे मदद की और ना मैंने मांगी, लेकिन उनके मन में अपेक्षा थी कि मैं उनके लिए कुछ कर दूं। इसलिए काम शुरू तो हुआ गोपालपुरा गांव से। गोपालपुरा 3 साल में पानीदार बन गया। जब इस गांव में ये पानीदार बन गया तो इस गांव के जितने भी रिश्तेदार थे वो सब इस गांव में काम देखने आए और फिर उन्होंने अपने अपने गांव में काम शुरू किया। देखो, ये जो पानी का काम है ये विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ट्रू। और जो इंडियंस हैं वो विजुअल पे ज्यादा भरोसा करते हैं, कान की सुनी हुई बातों पर उतना भरोसा नहीं करते। इसलिए इस हमारे पानी के विजुअल इम्पैक्ट ने लोगों को मोटिवेट किया और हमारा काम स्केलिंग अप होने लगा, रीएप्लिकेट होने लगा। तो हमारे काम की रीएप्लिकेशन एंड स्केलिंग अप अपने विजुअल इम्पैक्ट के कारण शुरू हुई। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब मैं अर्बन इन अर्बन सिटीज में जो मैं काम करती हूँ, कितना मतलब ऑपोजिशन आता है, कितना जो एनक्रोचमेंट हो चुके हैं। मतलब लेक्स के आजू बाजू कम्युनिटीज इकट्ठा करने के लिए कितना मुश्किलें उठाना पड़ा। लेकिन जब पहले मैं क्लीन अप करना चाहती थी, फर्स्ट क्लीन अप में मैं सोच रही थी 100 लोग आएंगे, क्योंकि उसके पहले 40 मीटिंग किए मैंने,
उसके आजू बाजू के कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे। बट पहले क्लीन अप में मुझे फर्स्ट रियलाइजेशन आया कि खाली मैं और अपने मेरे सुपरवाइजर हम दोनों ही क्लीन अप करें, लेकिन हमने मतलब वी वर नॉट डिसअपॉइंटेड। हमने वो सोचा, हमने सोचा ये काम करने के लिए हम करेंगे, लेकिन जैसे आपने बताया विजुअल इम्पैक्ट इज सो ट्रू। आई मीन विजुअल इम्पैक्ट करने के बाद जितने लोग आज मेरे साथ हैं, तकरीबन 6,000 लोग जो पूरे कम्युनिटीज के जो मेरे साथ हैं 3 साल के बाद। सो बहुत बहुत सही बताया आपने कि पीपल वांट दैट विजुअल इम्पैक्ट। तो विजुअल इम्पैक्ट के बाद फिर आज वो कम्युनिटीज जो लेक के पास है उन लोगों ने खुद अपना इलीगल सुएज बाहर निकाला और लीगल ड्रेन्स में डाला है। तो बहुत सारे थिंग्स दैट हैपन, मुझे बहुत इंस्पिरेशन आया। फिर मैं अभी वी आर वर्किंग विद मेनी लेक्स, यानी बहुत सारे कम्युनिटीज इकट्ठा करना, बिकॉज अर्बन जो एजुकेटेड आदमी है उसको मतलब बिहेवियर चेंज लाना इतना मुश्किल बात है। दैट द फर्स्ट रियलाइजेशन मुझे ये आया कि उनको एजुकेट करना इतना मुश्किल है। और द होल स्ट्रैटा अगर हम लेक ले लें तो पूरा डिफरेंट सोसाइटीज है, मतलब हाई एंड है, लो एंड है, स्लम्स है। मुझे ये भी रियलाइजेशन आया कि हर एक के लिए अवेयरनेस जो है अलग तरीके से देना पड़ता है। जैसे स्लम्स है, मैं जाके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी तो उन लोग मेरे साथ आए काम करने के लिए। सो बट इफ यू गो टू हाई एंड सोसाइटीज उनको टेक्निकली बताना पड़ता है हमारा विजन क्या है, वी हैव टू टॉक डिफरेंटली। तो बहुत सारे लर्निंग्स है। और बड़ा और एक लर्निंग है कि पानी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट, लैंड जो है जीएचएमसी, टाउन प्लानिंग एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, और जो इनलेट्स आउटलेट्स हैं एचएमडब्ल्यू वाटर बोर्ड से। तो ये सारे जो लोग हैं कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं और मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है हर एक के लिए। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन। तो मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने गवर्नमेंट के साथ मतलब कुछ जब पार्टनर करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस में जब काम करते हैं तो आपको कौन से मुश्किल स्टेप्स, आई मीन आप तो कैसे आपने उसको पार किया, मतलब आपको अगर आया एक मुश्किल, आई मीन हाउ डू यू रीच टू द गवर्नमेंट, उनके साथ काम कैसे किया? मेरा जब पहला काम पूरा हुआ गोपालपुरा में, उसका नाम था मेवालो वाला बांध। इस बांध का काम पूरा होते के साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया कोर्ट से, एंड उस नोटिस में लिखा था कि आपने ये जो बांध बनाया है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का पानी रोका है, आपके खिलाफ इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 के सेक्शन 55 और सेक्शन 58 में आपके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होती है। कोई सुनवाई नहीं, मुझे सुनने का मौका नहीं। मैंने उसी नोटिस के पीछे के कागज पर जवाब लिख दिया कि ये जो वाटर बॉडी है ये गोपालपुरा के गांव के 57 फैमिली ने 57 फैमिलीज ने मिलकर बनाई है, और इस वाटर बॉडी में 57 फैमिली की लैंड का पानी ही रुकता है। तो ये पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट का नहीं रोका हमने जो हमारी जमीन पर पानी बरसता था वो हमारा है, वो ही हमने रोका है। बहन जी, मेरा जवाब जाने के बाद कोर्ट ने कोई कार्रवाई की नहीं, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ 377 नोटिसेस भेजा। ओह माय गॉड। मैं तो डरा नहीं, यदि मैं डर जाता तो ये काम बंद हो जाता। और मैंने कभी उनसे फरियाद भी नहीं की कि तुम मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो। उन्होंने कागज पर कार्रवाई शुरू की, मैंने कागज पे जवाब दिया और लोगों को संगठित किया।
क्योंकि लोग संगठित थे, लोग ये बोलने को तैयार थे कि ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर वर्षा पानी हमने एक बांध में रोका है। तो मुझे क्या करना था फिर? मुझे क्यों सरकार से जाके सिर फुड़ाना था? मैंने किसी सरकार से पैसा नहीं लिया था उस बांध को बनाने के लिए। मैंने किसी कॉरपोरेट से पैसा नहीं लिया था उस बांध को बनाने के लिए। वो बांध मैंने और लोगों ने मिलकर बनाया था। वो पानी बादल लेकर आए थे, बादलों से निकला पानी हमने रोका था, हमने सरकार का पानी नहीं रोका था। वैसे उस जमाने में गांव की औरतें गीत गाती थी, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मुझे मालूम नहीं। जब से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी मुझसे रूठ कर चले गए हैं दिल्ली। मुझे मालूम नहीं मेरा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा। अभी उस गांव की औरतें एक और गीत गाती है, अब बादल आता है मेरे गांव में, बरसता है वो, रूठता नहीं है वो बादल, उससे निकलता है पानी, वो खेत में और कुएं में आता है मेरे। जब से मेरे कुएं में पानी आया, मेरा बेटा भी दिल्ली से मेरे घर लौट आया। अब वो खेती करता है, चारों तरफ हरियाली है। अब मुझे मालूम है मेरा बुढ़ापा इस हरियाली की खुशहाली में बीतेगा। तो यदि मैं सरकार से डर जाता या सरकार के भरोसे पे रहता, उससे पैसा मांगता, तो मैं आज ये गीत नहीं सुन पाता, ये बदले हुए गीत नहीं सुनता। बहुत बहुत सही बात बताया आपने कि लोगों को संगठित करो, ये मैंने भी सीखा है। बिकॉज अगर हम लोगों का एक शक्ति, वो बहुत पावरफुल होते हैं जब लोग संगठित होते हैं। देयर आर एक 500 लोग हैं हर एक लेक के लिए, तो हर कोई सुनेगा उनकी बात। बट द प्रॉब्लम इन अर्बन सिटीज इज जो अपने में लगे रहते हैं, उनके जो सेल्फिश लाइफ्स में लगे रहते हैं, और उनको संगठित करना बहुत बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने सीखा है कि 3 साल में अगर उसी पे लगे रहें तो पीपल डू कम फॉरवर्ड। और एक और चीज है, जो लेक्स के पास हैं लोग, वो पूरे आधा से ज्यादा लोग उन्हीं कुछ, आई मीन दे आर ऑन द रॉन्ग फुटिंग, उन्होंने ही एनक्रोच किया हुआ है। तो रॉन्ग पीपल के साथ हम कुछ राइट बनाने का काम कर रहे हैं। दिस वाज अनदर रियलाइजेशन। बट जो अभी जो है उसको बचाने की जरूरत है, एंड वी हैव टू इम्प्रूव अपने जो अभी ग्राउंड वाटर सिचुएशन है। तो मैंने खुद पहले अपने घर से शुरुआत किया, एंड आज लोगों के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत टफ चीज है, इजी नहीं है, और मैंने भी आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है गवर्नमेंट से। बट वी आर मेकिंग थिंग्स हैपन। आज मैंने आपके साथ बात करने से पहले वी स्टार्टेड द फर्स्ट जो रेन सेंटर है तेलंगाना में, फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड दिस रेन सेंटर। मोर लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए, मतलब वो क्यों नहीं कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, उनके क्वेश्चंस क्या है, उनको टेक्निकल हेल्प नहीं है। उनको बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि चलो लेक, मेरे घर के पास एक लेक है, उसको अच्छा करना है, क्या करने का जरूरत है। मैं बस इतना बोलती हूँ कि आपके पास 3 साल है, क्या आपके पास 4 साल आप डेडिकेट कर सकते हैं ये काम के लिए? बहुत सारे लोग की जरूरत नहीं है, एक 1 पर्सन विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल
कर सकते हैं ये लोग, बट यू नीड टू गिव द टाइम, बिकॉज काफी सारा एनर्जीज जाता है। कम्युनिटी को इकट्ठा करो, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट, पूरे को एक एक तरफ करना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये हो सकता है, ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। What you have done is amazing, sir. मतलब वाटर मैन ऑफ इंडिया जो कहते हैं आपको, मतलब वो 300%, मतलब इससे भी आपको ज्यादा अवार्ड्स मिलनी चाहिए। कैसे आपने डटकर ये सब चीज जो सामने किया है, तो हमको भी इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ, इफ यू हैव गॉट सो मेनी नोटिसेस, फिर भी आपने किसी बात पे, मतलब यू आर नॉट स्केर्ड टू गो अहेड, दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन हम लोग के लिए, जो आज के यंगस्टर्स हैं, उन सब के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। तो आपके घर आपने, मतलब मैं इतना देखती हूँ कि जितना टाइम मैं इस पे स्पेंड करती हूँ, तो घर का भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है टाइम, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? हाउ डू यू मैनेज? कल्पना, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जिसने मुझसे कभी मेरे टाइम के बारे में बहुत सवाल नहीं पूछे, लेकिन जब मैं उनसे मिलने घर जाता था तो वो गुस्सा जरूर दिखाती थी, लेकिन गुस्से के अलावा उसने मुझसे कभी बहुत सवाल नहीं पूछे। और तुम जानती हो कि जो सामाजिक काम करता है, फिर उसका कोई घर नहीं होता, फिर उसके कोई बच्चे नहीं होते। हाँ, उसकी पत्नी जरूर होती है या उसका पति जरूर होता है, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे मेरे बेटे और बेटी को पढ़ाया, मेरा घर, मेरी जो सब चीजें थी उसी ने संभाली, और मुझे उसने आजाद पंछी की तरह रखा। मैं आजाद पंछी की तरह उड़ता था, मैं आजाद पंछी की तरह काम करता था। इसलिए यदि आपके घर में थोड़ा सा आपको मोरल सपोर्ट मिल जाए, काफी। तो आपके परिवार का थोड़ा सा मोरल सपोर्ट दुनिया के बाहर के 1000 गुने मोरल सपोर्ट से भी ज्यादा होता है। ट्रू ट्रू, बहुत बहुत सही बात बताई आपने। माय हस्बैंड इज अ ह्यूज सपोर्ट, सर। उनके बिना मैं नहीं इतना काम, मतलब रोज इतने जो घंटे जाते हैं इसमें, ही इज अ ह्यूज सपोर्ट। जो घर में सपोर्ट मिलता है बहुत बड़ा चीज है। सो हैप्पी टू नो, सर। मैं मतलब जरूर आपके घर आऊंगी और आपके वाइफ से भी मिलूंगी बिकॉज ये बड़ा चैलेंज होता है। अभी एक अच्छी बात ये है कि कोविड-19 आने के बाद मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनी पत्नी के साथ अपने कैंपस में रहा। मैं 10 मार्च से अब तक अपने कैंपस से बाहर नहीं निकला। The first time I'm living with my wife in my campus, and she is very much enjoying, very much I'm enjoying. sure, I'm sure. वो कहती है कि तुमने जब जवान थे तब तो अब साथ रहे नहीं, लेकिन अब बुढ़ापे में साथ हो तो चलो, हमें संतोष है कि हम कभी तो साथ हैं। तो अब तुम अंदाज लगा सकती हो कि हम 10 मार्च से लेकर आज तक अभी हम बिल्कुल अपने कैंपस में रहते हैं, और मैं दिन में 10-12 घंटे अपनी खेती में आजकल लेबर वर्क करता हूँ। ये जो कोरोना के लोग हैं उनको ट्रेंड कर रहा हूँ कि वो सेल्फ रिलायंट कैसे बने। जो रिवर्स माइग्रेशन में आए उनको मैं अपने कैंपस की खेती में और अपनी जो नई वाटर बॉडीज बनाने का ट्रेनिंग है उसमें बहुत ट्रेन कर रहा हूँ। हमने इस कोरोना पीरियड में 10,000 फैमिलीज को उनकी जो लैंड है, लैंड को प्रोटेक्शन वाल बना के
जो वेस्टलैंड थी उसको खेती के लायक बनाने और उस पर पानी के संरक्षण का काम किया। Very तो लेकिन लेकिन मैं बाहर जाकर नहीं कर रहा हूँ, वो लोग यहाँ आते हैं, मैं उनको ट्रेन करता हूँ। और मेरी जो टीम है, तरुण भारत संघ की टीम बहुत बड़ी टीम है, वो उनको यहाँ से लेके फिर उनके फील्ड में उनकी जमीनों पर काम कराते हैं। तो आजकल मैं ये कर रहा हूँ। वेरी नाइस सर। सो आप वाटर मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है, मतलब हाउ डू यू रिलेट टू दिस? देखो मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में आपको कौन क्या कहता है, मैं इसकी चिंता ज्यादा नहीं करता। मुझे कोई वाटर मैन कहता है, कोई वाटर लवर कहता है, कोई रेन कैचर कहता है, कोई रिवर रिजुनेटर कहता है। मेरे सैकड़ों नाम हैं, लेकिन मुझे किसी भी नाम से ना प्यार है और ना मुझे बुरा लगता है। तो मुझे अच्छा ही लगता है। जितने भी नाम हैं वो सब पानी से संबंधित हैं, बादल से संबंधित हैं, नदी से संबंधित हैं, तालाबों से संबंधित है। कोई जोहड़ वाला बाबा कहता है, कोई पानी वाला कहता है, अरे वो जोहड़ वाले बाबा के पास जा रहा हूँ। इसलिए मुझे नामों से कोई लेना देना नहीं है। नाम तो जिसको जो अच्छा लगे सो कहे, और अच्छा है ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके काम से होती, वो नाम से नहीं होती। नाम तो लोग अपनी सुविधा के अनुरूप देते जाते हैं। तो यही है। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल जो गवर्नमेंट्स है, ये लिफ्ट इरिगेशन पे, मतलब गेटिंग वाटर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर इतना सारा खर्चा करके पानी लाते हैं, पाइप सप्लाई। और क्यों नहीं उनका मन, मतलब व्हाई आर दे नॉट फोकस्ड ऑन अपने रिसोर्सेस क्या है, उनको सस्टेनेबल बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या मतलब अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको ग्राउंड वाटर रिच क्यों ना बनाने का क्यों नहीं सोचते हैं? हमेशा कहीं और से पानी, मतलब फ्रेश वाटर रिसोर्सेस को क्यों खत्म करने पे लगे हुए हैं, और हमारे सिटीज कैसे उस पर डिपेंड कर सकते हैं? कल्पना, तुम थोड़ी फॉर्चुनेट हो, क्योंकि तुम्हारी सरकार पूरी गोदावरी नदी का पानी बिना किसी की रुकावट के ले आई। लेकिन ये सरकार, शुरू में जब ये सरकार बनी थी, तब उन्होंने आपके जो पुराने तालाब थे उनको ठीक करने का काम शुरू किया था। और एक तालाब पर मैंने अपना जाके 6 अगस्त का दिन तालाब पर बिताया था। मुझे अच्छा लग रहा था कि तुम्हारी सरकार तालाबों के पुनर्जीवन का काम कर रही है। लेकिन तुम्हारी सरकार ने वो काम तो बंद कर दिया जो करना चाहिए था, और 80,000 करोड़ रुपया गोदावरी नदी के पानी को लिफ्ट करके खेतों में पहुंचाने पे खर्च कर दिया। अब वो जो लिफ्ट का पानी है वो पैसे का पानी है, वो तुम्हारा पानी नहीं है। तालाब का पानी तुम्हारा पानी है, बिना पैसे का पानी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भैया, बादल हमारे लिए लाता है पानी समुद्र से। बादल हमारे लिए पानी लाता है समुद्र से। उस पानी पर कीमत चुकाना, उस पानी की कीमत चुकाना नैतिकता नहीं है हमारी। उस पानी की कीमत चुकाना न्याय नहीं है हमारा। देखो, सूरज की जो रेड हीट है, लाल गर्मी है, वो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करती है, और डिसैलिनेशन के बाद H2O बनता है, जिसको बादल कहते हैं। बादल जो है वो गैस है।
ये जो H2O बादल है, गैस है, ये जब एक तरह से ब्लू हीट होती है, ये ब्लू हीट जब ग्रीन हीट के ऊपर आती है, जंगलों के ऊपर आती है, तो जो जंगलों का ट्रांस एवोपरेशन है वो इस ब्लू हीट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींच के लाता है। और ये ब्लू हीट और ग्रीन हीट दोनों मिलते के साथ ही दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं एक साथ, क्योंकि ब्लू हीट के अंदर H2O होता है और ग्रीन हीट के अंदर O2 होता है। तो H2O और O2 दोनों मिलकर पानी बन जाते हैं। तो दोनों का जब पानी बनते हैं उसको कहते हैं वर्षा, रेन्स। तो वो जो समुद्र के खारे पानी को सूरज की लाल गर्मी ने बादल बनाया, वो बादल जंगलों की तरफ आया और जंगलों की हरियाली देखकर उन पर हरियाली से देखकर बरस गया। वो जब पानी बरसता है तो मिट्टी में मिलता है बरसने के बाद, और मिट्टी में मिलने के बाद ये वाटर और सॉइल की सेक्सोलॉजी कहलाती है। ये पानी जब मिट्टी में मिलता है तो एक येलो हीट बनती है, पीली गर्मी कहते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी नेचर है, पूरी सृष्टि है, ये 4 तरह की गर्मी से बनती है। पहली गर्मी होती है रेड हीट, जो सूरज से निकलती है। दूसरी होती है ब्लू हीट, जो समुद्र से निकलती है। तीसरी होती है ग्रीन हीट, जो जंगल से निकलती है। और चौथी होती है येलो हीट, जो सॉइल से निकलती है, मिट्टी से निकलती है। तो ये जब ब्लू हीट, जब पानी मिट्टी में मिलता है तो उस मिट्टी के अंदर जो भी कुछ बीज होता है, सीड होता है, उस सीड को जर्मिनेट कर देता है और वो हरियाली बनती है। और वो हरियाली है, वो हरियाली एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके टेम्परेचर को नीचे करती है। और वो जो क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो दुनिया का ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को मेरे देश का अनपढ़ किसान कहता है कि धरती को बुखार चढ़ गया है, और उसके कारण मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। कल्पना, तुम्हें कभी जिंदगी में बुखार चढ़ा है कि नहीं? तो जब तुम्हें बुखार चढ़ता है तो तुम पैरासीटामोल खाती हो और अपने कमरे में जाके आराम करती हो। और यदि बुखार तेज है तो माथे पर पानी की पट्टी रखती हो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाता है। ठीक इसी तरह धरती का बुखार ठीक होता है। यदि आपके पास मिट्टी में मॉइस्चर है, नमी है, पानी है, तो मिट्टी में हरियाली आती है। फिर वहां का टेम्परेचर, वहां की धरती को बुखार नहीं चढ़ता और उससे मौसम का मिजाज सुधर जाता है। तो आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो ग्लोबल थ्रेट है, उसका लोकल सॉल्यूशन है। जो तुम कर रही हो वो सॉल्यूशन है। तालाबों को ठीक करना, लेक्स को ठीक करना, लेक्स को हेल्थी रखना। हेल्थ, लेक्स का, नदियों का, वाटर बॉडीज का हेल्दी होना धरती के बुखार को ठीक करने की दवाई है। धरती का बुखार ठीक करना है तो आपको वाटर बॉडीज को हेल्दी रखना होगा। वाटर बॉडी हेल्दी होंगी तो मिट्टी में मॉइस्चर होगा,
मिट्टी में मॉइस्चर होगा तो ग्रीनरी बढ़ेगी, और ग्रीनरी एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके हमारे क्लाइमेट को हेल्दी बनाएगी। ठीक है, बहुत सही सही बात बताया एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। आपके मतलब हर एक बात जो बोल रहे हैं इट्स लाइक इट्स लाइक अ बुक। इतना इतना प्रोफाउंड आपने जो बताया, मतलब आप मतलब सिखा रहे हो आज भी मैं सीख रही हूँ। तो मेरा बस इतना है कि सिटीज में क्या है, इतने सारे कंक्रीट हम बना चुके हैं, वो जो पानी धरती में आर्टिफिशियली रिचार्ज करना पड़ रहा है आज, वेयर नेचुरली सीपेज नहीं हो पा रहा है। दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। सो आर्टिफिशियल रिचार्ज भी हम लोग करा रहे हैं और बोल रहे हैं, एंड बट जो वेल्स है, हमारे कुएं हैं, बहुत सारे लोग उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भूल चुके हैं। और इफ यू सी लाइक ओल्ड सिस्टम्स, हमारे जो राजा थे वो लोग, आई मीन काकतियंस, 11th सेंचुरी में 4000 लेक्स बनाए उसने, आर्टिफिशियल लेक्स। अगर वो भी आज जिंदा होते तो आज के 1 करोड़ लोगों के लिए शायद काफी होता। लेकिन हमारा सोच ऐसा क्यों नहीं है कि हम आगे का नहीं सोच रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, वी आर जस्ट कॉन्क्रीटिंग एंड ओवर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग करते जा रहे हैं। लेकिन उसको रिचार्ज करने का, जैसे आपने बोला है बुखार ठीक करो, उसका वो लैंग्वेज हम लोग लूज कर चुके, एक रेस जैसे चल रहे हैं हम लोग उसको। मतलब एक कोविड ने जरूर रोक एक डाला है, वी कैन सी सो मच नेचर जो है कितना रिजुविनेट होती है। 3 महीने हम लोग ने टेम्पर नहीं किया तो कितना चेंज हम लोग देख रहे हैं। दिस इज अ गुड लेसन फॉर अस। बट मैं हमेशा सोचती हूँ कि सबको ऐसे सोचने का मतलब क्या करना चाहिए, हाउ टू चेंज द माइंडसेट। वो बिहेवियर चेंज जो है बहुत मुश्किल है, उस पे काम करना। कल्पना रमेश, तुम मेरी बात सुन रही हो? जब शुरू में राज करने में आए आपके राजा, तो उन्होंने काकतिया मिशन बनाया और काकतिया तालाबों को रिजुनेट करने लगा। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्टर और कॉरपोरेट ने उसकी ग्रीड बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि ये तो छोटे तालाब हैं, इनमें क्यों लगना है, इनमें तुम्हारा क्या होगा, बड़ा करो। तो जब कम्युनिटी ड्रिवन डेमोक्रेसी, जब पीपल ड्रिवन डेमोक्रेसी कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेमोक्रेसी बन जाती है, तब तुम्हारी ग्रीडीनेस बढ़ जाती है। तो ये जो हमारी ग्रीडीनेस है वो अब क्या है? अब तुम देखो, ये तुम्हारा कोविड-19 कैसे आया ये समझ लो पहले। कोविड-19 जो है वो एक देश है जो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बनना चाहता था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिफीट करके अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना चाहता था। उस देश की लेबोरेटरी से या उस देश के मार्केट से, मैं इस पे डिबेट में नहीं पड़ता, उस देश के लेबोरेटरी से या उस देश के मार्केट से, वो देश कहता है मेरी लेबोरेटरी से कोविड नहीं निकला, मेरे मार्केट से निकला है, वो ये कहता है। लेकिन अमेरिका और दूसरे देश कहते हैं नहीं, वो तो लैब से निकला है। वो कहीं से भी निकला हो, इस डिबेट में क्यों पढ़ना? लेकिन लिखना तो उस देश से जो देश दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बनना चाहता था। तो इसका मतलब ये कि आज की तारीख में दुनिया का जो इकोनॉमी नेट है, वो इकोनॉमिक नेट प्रॉफिट कंपटीशन का नेट बन गया है। तो जो प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट है, उसके लिए सब दौड़ में लगे हैं। और ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन है, ये लालच के कारण आता है, ग्रीडीनेस के कारण आता है। तो इस वक्त
प्रॉफिट और पैकेज सब यंग पीपल को, यूथ को प्रॉफिट और पैकेज दो चीजों की चिंता है। जब प्रॉफिट और पैकेज की चिंता होती है तो आप सिक्योरिटी को भूल जाते हैं, और सिक्योरिटी का मतलब होता है शुभ। आप समझ रही हो? हाँ, हिंदुस्तान में दो शब्द हैं, एक है लाभ, हिंदी में उसको लाभ कहते हैं, अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, और दूसरा शब्द है शुभ। शुभ जो होता है वो कॉमन लाइफ की सिक्योरिटी के लिए होता है, सबके लिए पुण्य, सबके लिए शुभ। इसका मतलब इस वक्त प्रॉफिट की कंपटीशन ने जो सिक्योरिटी का कंपटीशन है उसको डिफीट कर दिया है, खत्म कर दिया। इसलिए आज हमारे सामने हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी जब खत्म होती है जब हमारे बिजनेस में केवल प्रॉफिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम शुभ को छोड़कर लाभ के चक्कर में पड़ गए हैं। ये जो लाभ है ये लालच से होता है, लोभ से होता है। हमारे पड़ोसी देश के लोभ लालच के कारण पूरी दुनिया में कोविड ने सत्यानाश कर दिया। इसलिए हमें एक बात समझने की जरूरत है कि हम ये जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, हिंदुस्तान की सरकारें बिल्कुल भूल गई हैं। अब हिंदुस्तान की सरकारें एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के बारे में बात ही नहीं करती। हिंदुस्तान का जंगल जहां कोई जा नहीं सकता था, सारे का सारा जंगल 41 माइंस के लिए खोल दिया, कोल माइंस। तो तुम समझ सकती हो कि जो हमारा ब्राइट कॉमन फ्यूचर था, वो ब्राइट कॉमन फ्यूचर अब प्राइवेट कंपनियों का फ्यूचर बन रहा है। तो कम्युनिटाइजेशन ऑफ वाटर की जगह प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है। हैदराबाद के हर शहर में पानी के बोतल का बाजार मिल जाएगा, हर जगह बोतल मिल जाएगी पानी की, खरीद के पानी पियो। जो तुम्हारा पानी है उस पानी के लिए भी पैसा देके पियो। सही हुआ है। तो ये जो कम्युनिटाइजेशन था इंडिया का वाटर का, वो वाटर सिक्योरिटी थी। ये जो पानी का प्राइवेटाइजेशन है ये प्रॉफिट सिक्योरिटी है। कल्पना, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? हिंदी हाँ हाँ, नहीं समझ में आई है ना। आई स्टार्टेड थिंकिंग बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कहाँ से शुरुआत करें, किसको फिक्स करें, कहाँ से मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टैंजेंट्स में जा रही है सबको, मतलब इकट्ठा। बट एक ही चीज बस इतना याद रखना है, हमारे बच्चों को भी हम सिखा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए मुझे वो झंडा पकड़ना एंड स्लोगन्स वो नहीं चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप एक स्ट्रीट ले लो, आपके घर ले लो, वहां पे आप मतलब डू एन एक्शन, बी अ डूअर। डूअर होना जरूरी है। ये स्लोगन्स पकड़ के बैठना क्लाइमेट चेंज को ठीक करो, ये क्या, वी टीचिंग दिस। तो जब भी मैं स्कूल्स में जाती हूँ, उनको तालाब में लेके जाती हूँ, या टेक देम टू अ पोल्यूटेड लेक, आई टेक देम टू दीज ओल्ड स्टेप वेल्स, वहां बिठा के मैं बताती हूँ कि कहाँ थे हम और अभी कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं। देन
that is more understood than theoretical. या ये slogans धरना करना, ये नहीं सिखाना चाहिए अपने बच्चों को. I feel that वो climate change जो दूसरे countries से जो climate change के लिए जो बच्चे नारे लगाना, I think we should teach our children to be doers. आप कुछ करके be a doer. Don't drive these slogans. This is what I feel. What you said is हम economic मतलब profit इसके पीछे रैट रेस लगा हुआ है, लेकिन एनवायरनमेंट जैसी कोई चीज है जिनसे हम बने हैं, जिनसे हम लेते हैं रोज, इसका कोई मतलब मान्यत है नहीं आज. That's a very very sad thing. Similarly we have मैम हमारे पास सर तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कुछ लोग. कीर्ति मखीजा जैसे पूछा जाती है कि हम ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन कम्युनिटीज में कैसे लेकर आ सकते हैं जो आइसोलेटेड रहती है. तो वो कुछ इस बारे में जानना चाहेंगे. रेस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन ओनरशिप की तरफ मूव करता है. और जो कल्पना अभी बोल रही थी कि ये धरना, ये स्लोगन और ये डिमांड ऑफ राइट, ये हमें सेंस ऑफ ओनरशिप की तरफ मूव नहीं करता. मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ. तुमने ये जो हमारी स्टॉकहोम स्वीडन की एक लड़की है 11 साल की, ग्रेथा, उसका नाम सुना होगा. उस लड़की ने केवल स्लोगन दिए, बोली. वो मेरे देश की एक लड़की है पद्मावती, 23 वर्ष की, 23, शी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट. उसने 52 दिन तक गंगा की आजादी के लिए तपस्या की कि गंगा को भी आजादी चाहिए, जैसी हमें आजादी चाहिए वैसी गंगा को भी आजादी चाहिए, जिससे गंगा जी में अविरल निर्मल जल प्रवाहित हो सके. उसको तुम भी नहीं जानती, कोई नहीं जानता, लेकिन ग्रेथा जो स्टॉकहोम में बैठी है उसको कल्पना रमेश भी जानती है और ये अनंता अरोरा भी जानती है. इस फर्क को तुम समझ लो कि ये फर्क क्या है. क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन अपनी बच्ची को ग्लोरीफाई करना चाहता है दुनिया में कि हमारे बच्चे पर्यावरण की बहुत चिंता करते हैं, तो उसने पूरी दुनिया में ग्रेथा को बता दिया, 11 साल की लड़की को. हिंदुस्तान की सरकारें अपने अच्छे काम करने वालों को केवल दबाती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं. तो फिर कौन काम करेगा, क्यों करेगा? जब सरकारें ऐसी नीचता करती हैं तो फिर समाज क्यों करेगा? जब राजा ही दुष्ट हो जाए, अन्यायी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो फिर प्रजा क्या करेगी? प्रजा अराजकता करेगी, हिंसा करेगी, वायलेंस करेगी, अनार्की होगी. तो ये जो दृश्य है ये अनार्की का है, वायलेंस का है. और वायलेंस जब होती है जब राजा अपनी प्रजा के प्रति सम्मान नहीं करता, जब राजा अपनी प्रजा को नहीं सुनता. तुम शायद नहीं जानती, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो दुनिया में ग्रेट साइंटिस्ट था, नदी को जानने वाला, उस तो 11 दिन तक आमरण अनशन किया. तुम्हारे प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा को ठीक करूंगा. उस प्रधानमंत्री ने तुम्हारी गंगा के लिए प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो भारत का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फाउंडर सेक्रेटरी था, एक इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट था. एंड हिज साइंस विद सेंस, वो जो कर रहा था वो क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा था, उसको तुम्हारी सरकार ने इग्नोर किया
और 111 दिन की तपस्या करके उन्होंने अपने प्राण अपनी माँ को हेल्दी रखने के लिए लगा दे दिए। उसकी माँ थी गंगा। गंगा के लिए 111 दिन। तो देखो, ये जो सब बुरे काम कराती है सरकारें कराती हैं, इसके लिए सरकार रेस्पॉन्सिबल होती है। सरकार यदि उनकी बात सुन लेती तो ना तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को 111 दिन बिना खाए रहना पड़ता, तो केवल गंगा जल पीते थे, गंगा जल के बलबूते पर जी गए। अभी उनकी बातों को पूरा कराने के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती 13 दिन पर बैठे हैं गंगा माँ के लिए। जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की डिमांड थी उनको पूरा कराने के लिए, अब भी सरकार नहीं सुन रही है। तो तुम कल्पना ये बात समझने की कोशिश करो, जब सरकारें अपने समाज को इग्नोर करती है तब समाज अनार्की की तरफ बढ़ता है, तब समाज में हिंसा बढ़ती है, तब समाज में लूटपाट होती है, तब समाज का विश्वास टूट जाता है। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकतंत्र में तंत्र जब कब्जा कर लेता है सब चीजों पर, मीडिया पर, बोलचाल पर, सब पर कब्जा कर लेता है, तब लोक डर जाता है। लोक माने प्यूपिल। तो अभी लोक जो है, प्यूपिल्स जो है, वो डरी हुई है राज से। इसलिए राज स्लोगन देता है ना, अब राज अन्याय के खिलाफ कुछ काम करता है, चुप बैठा है घर में। घर में बंद है इस वक्त समाज, डरा हुआ। इसलिए तुम्हें इस वस्तु स्थिति को समझना। अनंता, सुन रही हो? हाँ जी सर। इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल। टाइम हो गया तुम्हारा कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। एक दो कुछ क्वेश्चन लोग और पूछना चाहते हैं, अगर हम वो ले सके, आपकी इजाजत हो? हाँ ले जी लो। सर। कोई पूछना चाहते हैं कि अगर युवा पीढ़ी जल के काम में आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं तो आपका क्या सुझाव रहेगा? तो आप दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जल के काम के लिए सबसे पहले जल को समझना, फिर उसको सहेजना। जैसे कल्पना तालाबों का सहेजने का काम कर रही है ना, तालाबों को हेल्दी बनाने का, लेक्स को। तो फिर पहला हुआ समझना, फिर हुआ सहेजना। सहेजना होता है क्रिएशन, बेटर क्रिएशन। फिर दूसरों को समझाना, और फिर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह करना। ये 4 काम युवाओं को तैयारी से करेंगे तो ये बेपानी देश पानीदार बन जाएगा। हाँ जी सर। इट्स वेरी ट्रू अनंता, जो सर ने बताया वो बहुत सही बात है कि पहले जैसे मैं बोल रही थी, आई वॉज ऑल्सो अनदर सिटीजन। मैं वाटर वॉरियर नहीं थी जब मैं पैदा हुई थी, लेकिन जब मैंने वो एस्टैब्लिश किया कनेक्ट वाटर के साथ कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर है, रेन वाटर है, यू हैव पाइप सप्लाई, लेकिन इतने रिसोर्सेज के साथ हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या कैसे मैनेज करते हैं। जब वो कनेक्शन आया, द कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, फिर सारे लोग उस पे जुड़ जाएंगे। तो वो अवेयरनेस में भी मैं वही करती हूँ कि कनेक्ट कैसे लाए वो लोगों के साथ, कि हाउ डू यू मेक वाटर पॉजिटिव, कैसे बनाए। जैसे आप इतना कंज्यूम करते हो, क्या आप इतना पानी धरती माँ को देते हो? अगर आप देते हो देन यू आर अ वाटर न्यूट्रल पर्सन। आप ज्यादा देते हो तो वाटर पॉजिटिव। तो आप आज वाटर पॉजिटिव बनने का जरूरत है। So it is very true। जो कनेक्ट जो है 200% जैसे सर ने बताया, कनेक्शन विथ वाटर। एंड युवा पीढ़ी जो है बहुत मतलब पीछे है एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे मैं बोलती हूँ, हर जगह स्लोगन नारा लगाना नहीं, आप
टेक अप समथिंग एंड डू। आप खुद मतलब किसी को जरूरत नहीं है कि किसी के घर जाके उनको कन्विंस करो, पहले आप अपने आप को कन्विंस कीजिए। आपके घर में आप थिंग्स को मैनेज करो, फिर आप एक इंस्पिरेशन बनो। 10 लोग आपसे इंस्पायर होंगे, फिर वो 10 लोग दूसरे लोगों को इंस्पायर करेंगे। यही है रास्ता। दिस इज द वे। एंड लोकली काम करना चाहिए, लोकल, हर एक स्ट्रीट, हर एक कम्युनिटी। अगर हम ऐसे काम कर सकते हैं तो बहुत सारा इम्पैक्ट जरूर ला सकते हैं। मैम अगर हम अर्बन एरियाज को देखें तो हम अर्बन एरियाज में ऐसी क्या चीज़ें हम अपनी लोकल कम्युनिटी में कर सकते हैं, लोगों को साथ ला सकते हैं, ताकि हम वाटर को और ज़्यादा कंजर्व कर सके। जैसे सर ने बताया कि बादल जो एक आता है, बादल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, अर्बन कम्युनिटीज में पहला जो है आपका रूफ टॉप है। आपके एसेट्स क्या है पहले इसको रियलाइज करो। आपका रूफ टॉप है, आपके पास संप है। जस्ट रूफ टॉप से जस्ट सिंपल फिल्टर के साथ आप संप में पूरा पानी ले सकते हो, यू कैन यूज। उसका जो ओवरफ्लो है, आपके पास डेड बोर भी है। मतलब अगर हर एक कम्युनिटी में जाओ तो 3 वर्किंग बोर है तो 3-4 डेड बोर भी पड़े हुए हैं। ये रिसोर्स है आपके लिए। तो जस्ट कनेक्ट रूफ टॉप, आपके संप, आपके डेड कोर, मतलब ये सारे रिसोर्सेज आप ही के पास है। जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। वो कनेक्ट करने से आप इतना इम्पैक्ट ला सकते हो आपके खुद के लिए। सो दिस इज दैट्स व्हाट वंस यू कनेक्ट टू वाटर, उसको मैनेज करने का तरीका अगर आप समझो तो इट्स वेरी सिंपल। बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, और नहीं होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बस कॉमन सेंस होता है। कैसे मैनेज करना अपना पानी इज अ वेरी कॉमन सेंस थिंग। इट इज नॉट अ बिग टेक्निकल थिंग। अगर हर एक कम्युनिटी आपका पानी, अगर जैसे फ्रांस में है अभी, फ्रांस में गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपका रूफटॉप हमारा गवर्नमेंट का एसेट है, आपका नहीं है एसेट। जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन, इफ योर रूफटॉप इज नॉट योर्स, मतलब उसका वैल्यू कितना है, वो कितना प्रेशियस है। हमारे पास जो एसेट्स है हमारे घर में जो है, पहले उसको रियलाइज करो, फिर so much can be done। हमारे जो ग्रे रिसाइकल्ड वाटर है, जो 80% ऑफ वेस्ट वाटर इज ग्रे वाटर, उसको आप इजीली रिसाइकल कर सकते हो। रिसाइकल करने के बाद बहुत सारे सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। then your demand on on the groundwater, plugging so much groundwater, ये सब चीज आप मतलब जरूरत नहीं होगा, इतना सारा पाइप सप्लाई का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको। जस्ट मैनेज करो आपके वाटर को, बट उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा आपके वाटर से। आई थिंक इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ, लाइक आई सेड, बहुत कॉमन सेंस। इट्स ओनली कॉमन सेंस, इट्स नथिंग एल्स। हाँ जी मैम। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन लास्ट जो मैं लेना चाहूँगी यहाँ से, कि हम डेली यूज़ में हम क्या रूटीन में चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे हम पर्सनली भी वाटर को कंजर्व कर सके और स्प्रेड अवेयरनेस भी हम इंक्रीज कर सके। ये किसी ने क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछा है। एक बात समझ लो अनंता, हाँ जी। यदि हम अपने जीवन में एक बात तय कर लें कि मैं अपनी लाइफ के लिए इस नेचर से जितना पानी लूंगा या लूंगी, अपने मरने से पहले उतना पानी इस नेचर को देकर जाऊंगी। ये प्रिंसिपल यदि हम अपने जीवन में तय कर लेते हैं तो फिर जैसा हमारी बहन ने बताया, वैसी बहुत सारी समझ, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, विधि, ज्ञान आप सबके पास है। आप सब सीख जाते हैं। अब आपके पास आर्य शेखर बैठा है हमारा इलाहाबाद से, उसने अपने आप कैसे, जब वो हमारी जल विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब कोका कोला के खिलाफ आंदोलन करके हमारे तिजारा अलवर जिले की जो 41 डिस्टिलरी और ब्यूबरी थी, उन्होंने अपने वाटर की पढ़ाई के दौरान वो सब बंद कराई। हम लोग फिर हाई कोर्ट गए और सब बंद हो गई। तब वो विद्यार्थी था हमारा तरुण जल विद्यापीठ का।
तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत इनोवेटिव होता है, लेकिन उनके मन में क्लैरिटी नहीं होती कि उनको जीवन में बनना क्या है। कि हमारे जीवन में ये क्लैरिटी हो जाए, मैं अपने जीवन में जितना पानी खर्च करूंगा उतना ही पानी जीवन में संरक्षण करके धरती माता को, प्रकृति को या अपनी नदी को वापस दूंगा। ये एक मोटी बात हमारे मन में पक्की तय हो जाए तो फिर हमारा मन कहेगा अरे यार, साफ पानी में गंदा पानी नहीं मिलने देना, साफ पानी को और गंदे पानी को अलग अलग रखो। तुम जानती हो कि जैसे एक बड़े बर्तन का दूध, उसमें 2 बूंद जामन डालने से सारा दही बन जाता है, वैसे ही एक नदी का बहुत साफ पानी एक इंडस्ट्री का थोड़ा सा केमिकल पानी मिलने से पूरा खराब हो जाता है। तो यदि हम यहाँ से शुरुआत करें कि अच्छे पानी को और गंदे पानी को कैसे अलग अलग रखना, तो इससे हम लोग आगे जा सकते हैं। हाँ जी सर। Very well said. रूफटॉप हार्वेस्टिंग, कॉमन प्रॉपर्टी हार्वेस्टिंग, लेक, पॉन्ड्स प्रोटेक्शन, रिजुविनेशन, ये सब डिफरेंट वे ऑफ वर्क है, डिफरेंट एंगल ऑफ वर्क है। लेकिन एक मोटी बात यदि हम आज तय कर लेते हैं कि मैं अपनी लाइफ में इस नेचर से जितना पानी लूंगा उतना ही पानी इस नेचर को मरने से पहले दूंगा, बस फिर सारी है एक्सप्लोरेशन होती रहेंगी, कर लेंगे सब। ठीक है? हाँ जी सर। Very well said. वेरी वेल जिसका ये सवाल है उसको बता दो कि भैया एक सिद्धांत तय कर लो, फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप ढूंढ लेगा क्या करना है। हाँ जी। फिर राजेंद्र सिंह को या हमारी कल्पना बहन को बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है? बिल्कुल खुद सर। उसका दिमाग बता देगा, उसका खुद दिमाग बता देगा कि क्या करना है। हाँ जी सर। मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आप आज आए, काफ़ी हमें चीज़ें डिस्कस करने को मिली यहाँ पर आकर। कैसे आपने हमें बताया मैम ने कि कम्युनिटी को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेम दूसरे पे हम डालते रहते हैं कि ये करेगा वो करेगा, पर शुरुआत हमें खुद से करनी है, अपने आसपास के लोगों से करनी है। कैसे बादल अगर हमारे पास आ रहे हैं, हम बादल को कैसे यूज कर सकते हैं, और जो धरती का बुखार की सर ने बात करी, कैसे हमें धरती का बुखार हटाना है, हमें उसको हटाना है, एकदम हटाना है, हमें हेल्थ पर फोकस करना है। और यूथ को भी आई थिंक ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे प्रॉफिट और पैकेज पर ही सिर्फ भागना नहीं है, हमें अपनी सिक्योरिटी पर भी बिल्कुल ध्यान देना है। लोकली हम कैसे काम करेंगे आगे। मेरे टीममेट कुछ बोलना चाहेंगे। थैंक यू अनंता, बहुत Thank अच्छा you. लगा कल्पना मैम आज आपसे सुन के। मुझे उम्मीद है कि राजेंद्र सर से हम सब लोगों को बहुत सारा सीखने को मिला होगा। और मैं आज ऑस्पिशियस डे पे सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने हमको ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि हम सबको मिलके जल के बारे में और ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए और ज़्यादा के बारे में बात होनी चाहिए। आई थिंक तभी एक मूवमेंट के रूप में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले समय में हम और चर्चाएं करेंगे, हमें और भी अलग अलग विषयों पे चर्चा होगी। धन्यवाद आपकी टीम का। और रेशमा जैन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपसे मैम हमको कनेक्ट किया। राजेंद्र सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनके चरण स्पर्श करना चाहूँगा, उन्होंने ज्वाइन किया आज हमको। और thank you everyone for joining. We are heading towards ending the session. Thanks a lot. Thank you, Manoj. Thank you, Ananta, and thank you, Reshma. And it's been my dream to have a conversation with Rajendra sir, and today that dream is fulfilled. And
it's just an amazing feeling. मतलब वो एक शब्द जो उन्होंने बताया, it's like it's instilled in the mind so much, and I'm sure we'll all follow the things that he has said, because literally, like I said, he is a legend in what he's done. So बिल्कुल बिल्कुल. huge inspiration, and thank you for bringing me on this platform with a conversation with him. I cannot thank you guys much, and happy Independence Day, all of Happy you. Independence Day. Thanks for Thank thanks you. for joining, everybody. Thank you Thanks a for lot. joining. Thank you. Bye bye. Bye, Ananda. Bye. Bye.